हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। My younger brother, Principal Dr. N.R. Sharma, will be with you for rest of the proceedings. And on my personal note, I extend a very grateful welcome to you to SUS, Punjab University Constituent College, Guru Har Sahib. Now, please over to Dr. N.R. Sharma, Principal, Shaheed Udham Singh Punjab University Constituent College, Guru Har Sahib. Over to Dr. N.R. Sharma. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी भारद्वाज जी सर, ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ SUS पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज गुरु हर सहाय डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दी रहनुमाई च अते प्रिंसीपल डॉक्टर NR शर्मा दी अगवाई हेठ करवाया जा रहा है। इस वैबीनार का थीम है इंस्टीट्यूशन कोपिंग डिजास्टर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। पूरा वर्ल्ड जिहड़ा है कोविड-19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਅਦਾਰੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ NR ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ स्वागत करने जड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। भारद्वाज अपने प्लीज ये जो ऑडियो है ये ऑफ करो अपना। भारद्वाज जी सर। ऑनरेबल डॉक्टर नावेद जमाल साहब, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड स्कॉलर प्रोफेसर सुनील कुमार खोसला जी, एमिनेंट गेस्ट एंड डिग्नेटरीज, respected colleagues and students. On behalf of Shaheed Udham Singh Punjab University Constituent College Guru Har Sahib and in the capacity of seminar convener, it's my immense pleasure to extend a warm welcome to all of you who have joined us today webinar on institution coping disaster of COVID-19 pandemic. We are really grateful to Dr. Named ji, a person of international repute, for acceding to our request to grace the occasion as key speaker. Dr. Naveed Jamal completed MA MPhil from Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, and finished his PhD from Jamia Millia Islamia. Before joining Department of Political Science, Jamia Millia Islamia in 2006, he was permanent faculty of Political Science Department at Dr. Zakir Hussain EG College, University of Delhi. Professor Naveed, currently Associate Professor Dr. Naveed Jamal in National Academic Endeavor and project was actively engaged and involved in the formulation and finalization of fundamental of political science, glossary of political science, and working on Paribhasha course for Commission for Scientific and Technical Terminology, CSTT.
under Department of Higher Education, MHRD, Government of India. Of late, political science glossary in Bangla also published. Bharatiya Samvidhan course is under progress. Having involved in BA, MA and PhD teaching, Dr. Naved Jamal help in the preparation and formulation of various courses and papers at undergraduate and postgraduate and PhD level of political science and public administration at Jamia Millia Islamia Central University. Dr. Naved Jamal academic endeavor took him to United Kingdom, France, Germany, South Korea, and Iran, apart from various central and state universities in the country, for various conference and seminars as speaker, chairperson, and co-chair, apart from writing articles in books and journals. In Jamia Millia Islamia corporate life, Dr. Naved Jamal held administrative posts, including warden and provost, Jamia school hostels, superintendent of entrance exam, apart from assistant coordinator of IGNOU 0707 Center, JMI. Dr. Naved Jamal has been actively involved in various academic bodies, including life member of Indian Institute of Public Administration, life member of Indian Association of American Study in Bengal Institute of Political Studies, apart from member of Teen Murti Library and Museum. Dr. Naved also is part of the inspection team of Bar Council of India for 5 years law course in various Indian universities. Dear Naved ji, we thank you for your kind gesture and in spite of your occupations, I am sure we all will be greatly blessed from your valuable input in this topic. With deep sense of gratitude, I welcome you, sir. And dear friend, COVID-19 nowadays has changed the way the world works. Just like the Great Depression, dot-com bubble, and the 2008 financial crash did in the past. Now the question in everybody's mind is, will things go back to normal or it will take some time? Even fundamental changes will take place in how people, business and economic functions. The next 12 months, I think, will be difficult. Many business will struggle, some may even perish forever. What as with economic adversity of the past, new industries will emerge, bringing with it renewed hope of recovery. Eventually, things will be go back to normal, just that we will have to change the definition of normal. With these few words, because everybody want to listen, Professor Naved, with these few words, once again I welcome you all to this webinar and hope that you will have an engaging and enriching session ahead. Once again, welcome to all. Thanking you. Now, I request to Professor Naved and topic. Professor Naved ji. नमस्कार नमस्कार सर. शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज प्रोफेसर राजकुमार वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल डॉक्टर एन.आर. शर्मा शहीद उधम सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी
मेरे प्रिय साथी, सहपाठी, छात्र और छात्राओं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपनी बात बात जो रखूंगा अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों ही भाषा का जहां होगा चयन रखूंगा और करूंगा, क्योंकि एक हम वास्तविक दुनिया में अभी बात कर रहे हैं और वास्तविक दुनिया में या वर्चुअल वर्ल्ड में ये वेबिनार के माध्यम से मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। और मेरा विषय रहेगा लोकतांत्रिक संस्थाएं किस प्रकार सक्षम हैं कोविड-19 या पोस्ट कोविड परिस्थितियों में उभरने के लिए। उसी संदर्भ में ये हमें देखना होगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं हम कैसे समझें, क्या उनका परिप्रेक्ष्य है, क्या उनकी कार्यशैली है, किस प्रकार उनकी कैपेसिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स आर देयर टू कोप अप विथ कोविड-19, and most importantly to focus on the various types and categories of capacity building programs which are there existing in India and also across the world when we talk of World Health Organization and other institutions at the global level to overcome this COVID-19 pandemic. The globalized world, और जब हम बात करते हैं वैश्वीकृत विश्व की, तो इसने हमारे समक्ष कई नई चुनौतियां रखी, और जब चुनौतियां रखी तो उसके समक्ष कई सारे नए अवसर भी सामने रखे। लेकिन इस सब के साथ समस्याएं भी आई। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो ये समझना होगा कि WHO ने जो कोविड-19 है, इसको जब समस्या उभरी, तो जब सामने आई मेजर, बहुत बड़े तरीके से विचलित रूप ले चुकी थी जब ये समस्या, तो इसको कहा इट इज अ रॉन्ग इन अ सेंस के जनवरी में इसे टैकल किया जा सकता था चाइना में। यदि हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो 1 जनवरी 2020 यानी नव वर्ष का आगमन और 44 केस नमूनिया के पाए गए चाइना में। मार्गरेट हैरिस जो स्पोक्स पर्सन WHO के उस समय 4-5 जनवरी को ये कहते हैं नोटिफिकेशन के जरिए कि एक समस्या न्यूमोनिया जैसी आई है। 15 जनवरी को भी लॉकडाउन का कोई संभावना नहीं, ना उन्होंने व्यक्त करी चाइना ने, और यह भी क्लियर नहीं हुआ कि यह मानव से मानव संक्रमण है। तो ये एक बहुत सीरियस डिजीज इस संदर्भ में कि जो मानव के खाने योग्य चीजें नहीं हैं, यदि हम उसका सेवन करें, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ, पिक से हुआ, ये चमगादड़ से हुआ, इनका सेवन, तो ये अमानवीय है, इसको मना कर दिया गया। लेकिन अभी चाइना ने प्रतिबंधित नहीं करा उस तरीके से जो करना चाहिए था व्यापक। उसी संदर्भ में एक ये सीरियस डिजीज विश्व के समक्ष आया। पहली बार 12 जनवरी को ये जीनोम डिस्क्राइब हुआ, लेकिन इसका साइज तब भी क्लियर नहीं था। 23 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं, लेकिन कंसेंसस कुछ भी नहीं निकल पाता कि हमें क्या करना चाहिए 23 जनवरी तक। 30 जनवरी को पहली बार डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू होती है। तो हम देखें कि ऐसा क्यों हुआ, विलंब क्यों हुआ इसको बताने में। कारण था सीधा सीधा 2005 का हेल्थ रेगुलेशन या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो WHO ने जारी किया। उसके संदर्भ में यह बात क्लियर रही कि क्योंकि अब वैश्वीकृत विश्व में हम काम कर रहे हैं, एकदम ट्रैवल बैन लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था शर्मरा जाएगी विश्व की। इसीलिए इतना समय लगा इसको बताने में, समझने में,
और ये पहचान पाने में कि ये महामारी क्या है। तो इसी संदर्भ में हमें ये जानना होगा कि संस्थाओं का क्या रोल है, किस तरीके की वो राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण कर रही है संस्थाएं, किस प्रकार के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का संचालन हो रहा है, निर्वहन हो रहा है। उसी संदर्भ में various stakeholders are there when we talk of institution. As I already discussed, World Health Organization is a very important body. और जब भारत की हम बात करते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय आ जाता है आपका, जहां आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आ जाती है, जहां होम मिनिस्ट्री जो आप देख रहे हैं, पुलिस किस तरीके से कोरोना वॉरियर बन चुकी है, या और भी संस्थाएं, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, जहां हम देखते हैं हमारे फौजी भाई और बहनें लगी हुए हैं, सेवा कर रही हैं, जिसमें संस्थाएं भी हैं, डिफेंस DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कम समय में एक उचित दृष्टिकोण से निर्माण किया, और उसी से जुड़ी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, या और भी संस्थाएं हैं, जैसे हम बात करते हैं सैनिटेशन की, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी, या अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, या हम ये बात करें, देखें कि किस तरीके से जो हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ घर से घर जा रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, जहां सारी संस्थाएं मिलकर निर्वहन कर रही हैं कार्य का, चाहे स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की ही क्यों ना हो, जिसमें कल भी जयराम रमेश जी ने, जो अध्यक्ष है, उसने चर्चा करी कि किस प्रकार भारत जो है, जो वैक्सीन डेवलप कर रहा है, किस प्रकार से हमें विश्व के समक्ष रखना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, किन चैनों से हमें गुजरना है। तो संस्थाएं बहुत जरूरी हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और हमें यह भी समझना होगा कि जब हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, तो एक्सपोज भी करने क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। आरोग्य सेतु ऐप आ चुका है, प्लाज्मा डोनर ऐप भी लॉन्च हो चुका है दिल्ली में, और राज्यों में भी तेजी से आगे उसे लॉन्च किया जा रहा है। तो समस्या इतनी बड़ी है कि हमें यह देखना होगा कि किस तरीके से हमें टेस्ट करना है, किस तरीके से टेस्ट करके आइसोलेट करना है, और जो सबसे कठिन कार्य है ट्रेसिंग इंफॉर्मेशन, बहुत जटिल कार्य है ये। लेकिन सूचना के माध्यम से, जहां ICT बहुत अग्रम हो चुका है, अग्रमी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार के माध्यम विकसित हो चुके हैं, तो ट्रेसिंग उतना जटिल नहीं है यदि हम सब सहयोग करें तो। ये राष्ट्र हमारा है, ये विश्व हमारा है, ये संसार हमारा है। भारत में जहां लोग एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के हृदय के बारे में सोचते हैं, यही भूमि पंजाब की, जहां बाबा फरीद ने एक समय का, जिससे बाबा नानक बहुत प्रभावित हुए, ढादे मंदिर ढादे मस्जिद, ढादे जो कुछ ढेंदा, ढावे ना दिल किसी का, दिल विच रब रहंदा। तो मानवीय मूल्य जो है, या सोशल मूल्य जो है, सामाजिक मूल्य जो है, वो सर्वोपरि हैं, जिसमें हम सबसे बड़ी चुनौती जो हम बात करते हैं वो शिक्षा की है, कि आज कोविड-19 की कितनी शिक्षा हमारे गांवों तक है, कि वो जागरूक हैं इस चीज को, इस बीमारी महामारी को लेके, या उनसे हमारा कितना संवाद है, या हम उन्हें कितना बता पा रहे हैं, या हम उनसे किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं अपने आप को, या और जटिल समस्याएं हैं। समस्याएं जेंडर से जुड़ी हैं, बच्चों से जुड़ी हैं। इस महामारी में हमने ये भी देखा कि महिलाओं का उत्पीड़न, हमने ये भी देखा बच्चों का उत्पीड़न, बल्कि विश्व के कई कंट्रीज में, तो फ्रांस और जो सभ्य समाज में सर्वोपरि राज्य हैं, वहां पे यदि हम देखेंगे तो उन राज्यों में भी महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़ा है पेंडेमिक के संदर्भ में, क्योंकि अब बच्चे घर पे हैं, माँ बीवियां भी घर पे हैं, और
जो हमारा समय घर पे है, तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा बढ़ गया है। ये भी एक जटिल प्रश्न है, किस तरीके से हाउ टू कोप विद द मेंटल हेल्थ इशू। तो जेंडर और ये सारे जो जुड़े मुद्दे हैं। तीसरा जो एक और मुद्दा जो हमारे समक्ष है वो है फूड क्राइसिस का। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है और ये पंजाब ही है जहां से हरित क्रांति शुरू हुई। आज आप देखिए कितनी सोना जमीन आ रही है, जहां सोना उग रहा है। यदि ये फूड बास्केट न होती तो आज भारत का हाल आप समझ सकते हैं। हम कहां से लेते हैं अनाज, किससे लेते, कैसे लेते। ये एक बड़ी चुनौती है फूड क्राइसिस की, जो किसी भी संदर्भ में हमारे कृषि प्रधान देश, जहां किसान अपनी जान की बाजी लगा के राष्ट्र निर्माण में अग्रणी है। तीसरा इसी से जुड़ा मुद्दा है वो है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में देखें तो भारत ही में कम से कम नहीं तो 20 से 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और अमेरिका में तो पहले ही हफ्ते में 6 मिलियन लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया। तो ये महामारी कोई आसान, या उसको समझना कोई आसान चीज नहीं है। ये अपने साथ कई चुनौतियां मानव जाति के लिए लेके आई है, और हमें ये समझना होगा कि ये जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, हम सबको किस प्रकार मिलकर इससे लड़ना है। तो पहली जो हमारी चुनौती रहेगी कि हाउ टू completely understand the institutions which are working for the capacity building of various stakeholders, जैसे मैंने चर्चा की, so as to cope up with COVID-19 pandemic। दूसरा, वो किस टाइप या कैटेगरी की कैपेसिटी प्रोग्राम होंगे हमारे, जिनसे हम लोगों को जागरूक अवगत कराएं। जैसे हमने देखा फेस टू फेस प्रोग्राम ट्रेनिंग है, वेब के थ्रू ट्रेनिंग है, सैटेलाइट बेस्ड ट्रेनिंग है, या कुछ हमने कोर्स मॉड्यूल बनाए जिनका लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, चुनौती है एक देश के समक्ष। तीसरा, हम ये भी एम्फेसाइज या जोर देंगे कि रोल क्या होगा संस्थाओं का। दूसरे शब्दों में, जब हम राष्ट्र नीति का निर्माण कर रहे हैं तो उस संदर्भ में कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे होंगे जो वेरियस स्टेक होल्डर्स को केटर करें। तो जो लॉकडाउन हुआ पहले, और पंजाब तो उसमें अग्रणी था, जहां कर्फ्यू लगाया गया पूरा, और अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां ज्यादा है तो वहां कर्फ्यू अभी भी उसी तरीके से लगाया जा रहा है, और लोग सहयोग भी कर रहे हैं। कहीं कहीं पुलिस की बर्बरता भी आई, क्योंकि पुलिसिंग भी एक नए दृष्टिकोण में आ गई है। पुलिस को कभी ऐसा चुनौती नहीं मिली थी पहले, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को एक बहुत जटिल और कठिन कार्य करने का लक्ष्य दिया गया। चौथा, टू एक्सपोज द एक्टिविटीज in terms of gaps, lacunas, challenges and new opportunities। तो हम देख रहे हैं कि विश्व जो है प्रिकेरियस स्टेट में आ चुका है। इटली, जहां ज्यादा सक्षम स्वास्थ्य विभाग था, वो तक चरमरा गया। हमने ये भी देखा कि इंक्रीज्ड डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो गई, डिस्ट्रप्शंस आए, या डिजास्टर जो हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। तो ये लोकल से ग्लोबल फैल गया। जैसे वुहान का एक छोटा सा लोकलाइज किस तरह ग्लोबलाइज्ड समस्या बन गई। तो ये हमें वैश्वीकृत विश्व में हमें देखना समझना होगा, और इसके संदर्भ में हमें देखना ये भी होगा कि समुदाय क्या है, संस्था क्या है, समाज क्या है, क्या समाज, संस्था और संगठन अपनी कैपेसिटीज बिल्डअप कर रहा है। हमने देखा कर्फ्यू के समय में किस तरीके से कुछ संगठन बढ़ चढ़ के खाना बांटा, जिनके पास कुछ अवसर नहीं थे उन्हें अवसर दिए। जो बिहार से किसान पंजाब में आए थे उन्हें जहाज से घर भेजा, और वो खुशी खुशी वापस भी आ गए इसीलिए।
और जिन्होंने उनकी सहायता नहीं करी आज वो परेशान है, उनके खेत अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो निर्भर थे बाहर की श्रमिकों पे, दूसरे प्रदेश से श्रमिक आते थे, उन्होंने समय पे उन श्रमिकों की मदद नहीं करी, आज वो श्रमिक भी नहीं है उनकी मदद कर रहे। तो ये सब चुनौतियां हैं, संघर्ष है। लेकिन यदि हम इसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 10 साल की देखें तो कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है एक्सटर्नली सपोर्टेड रहा है, किसी भी प्रकार का डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो, लेकिन सभी ने सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं दिए। और जब हम बात करते हैं कोविड-19 की, जहां हमारी ट्रेनिंग है मेडिकल वॉरियर्स की, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में, पैरामिलिट्री फोर्स हो हमारी सीआरपीएफ, आरपीएफ, ये एक बहुत बड़ी भूमिका है इन सब की कि किस तरीके से कैपेसिटी डेवलपमेंट की जाए। बट इट कैन नेवर डेवलप सस्टेनेबल कैपेसिटी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इफ नॉट प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। इस पर बहुत सारी चर्चा हुई, अमेरिका के कई सारे थिंकर्स, डेविड एफ्टर ने इस पर चर्चा करी, सैमुअल पी हंटिंगटन ने चर्चा करी। उन्होंने ये बात कहा कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशंस जब कोलैप्स कर जाती हैं तो एक गैप आ जाता है, और वो गैप बहुत डेंजरस है संस्थाओं के लिए, चाहे वो किसी राज्य हो या बाहर के लिए हो। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है, इट मस्ट इंस्टेड एंटेल अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। And when I say combination of activities, it becomes very, very pertinent to understand what are these activities. Addressing challenges which are concerning human and material resources, organization, systems of organization, and also most importantly, legal and institutional framework. जैसे मैंने बात करी लीगल फ्रेमवर्क जो WHO का हेल्थ रेगुलेशन 2005 का है, किससे निदान हो सकता, समस्याएं आ गई कि हमने समय पे ही उसको महामारी घोषित नहीं किया और उसकी वजह से आज हम दो चार हो रहे हैं, पूरा विश्व दो चार हो रहा है। तो हमें एक होलिस्टिक या लॉन्ग टर्म अप्रोच की जरूरत है। जब हम बात करते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1990 में जाना होगा। और जब 90 की बात करते हैं तो 90 वो दशक था जहां शीत युद्ध की समाप्ति हुई, नए विश्व का एक निर्वाहन हुआ, और उसी संदर्भ में अमेरिका ने 3 चीजें विश्व के समक्ष कही। पहला था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। दूसरा उन्होंने कहा डेवलपमेंट, विकास। तीसरा कहा मानव अधिकार। और हमने अमेरिका की सटीक भूमिका देखी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में उन्होंने इराक में करी, उसके बाद सीरिया में करी, और कई सारे विश्व के देश दो चार हुए। शुरुआत अफगानिस्तान से हुई। हम महामारी की बात कर रहे हैं, लेकिन बमयान बुद्धा भी एक महामारी था। यूनेस्को शांत रहा, इसी तरह WHO शांत रहा। तो हमें समझना होगा संस्थाओं को। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं 1990 की, उस समय एक और सबसे बड़ी चुनौती थी कैपेसिटी डेवलपमेंट की, जहां एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो 1950 से चल रहा था, उसकी दोबारा निर्वहन की बात हुई, जिसका फोकस था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। अगर जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तो पॉलिटिकल डिके हो जाएगा। ये सैमुअल हंटिंगटन से मैं बोरो कर रहा हूं, पॉलिटिकल डिके। जरूरत इस बात की है टू डेवलप कैपेसिटी सो एज टू मीट द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। यदि ये हमारा नहीं होगा तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। चाहे हमें परिप्रेक्ष्य में जाना पड़े, गांधीयन फिलॉसफी में आत्मनिर्भरता में उन्होंने किस तरीके से स्वदेशी और जलियांवाला बाग तो उसका एग्जाम्पल है कि लोग जमा हुए। जहां स्वाहा की बात की गांधी जी ने, पंजाब अग्रणी था, पंजाब से यह आवाज उठी, आरा तक गई बिहार के।
तो हमें ये समझना होगा कि वो कैसा आंदोलन था जब हम बात कर रहे थे विदेशी वस्त्रों को स्वाहा करने की। और आज हम जब बात कर रहे हैं कि हम स्वदेशीकरण करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो ये बहुत एक बड़ी चुनौती है, जहां विश्व में पटन पे भी हम देखें इन्फ्लुएंशियल वाइसेस जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो भी दो चार हो रहे हैं पेंडेमिक कोविड-19 के डिजास्टर रिस्क को लेके। चाहे वो एयर ट्रेवलर्स हों, एयर ट्रेवलर किस तरह पोटेंशियल कैरियर बन गए। पंजाब में भी जो बाहर से आए, विदेश से आए बेचारे हमारे साथी काफी सारे जो पंजाब में हैं, वो कनाडा में, अभी तो इतनी बड़ी हमारी भूमिका है कनाडा में ही, 30 से 40 एमपी तो हमारे पंजाब से ही हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वहीं कनाडा के यहीं से हैं। तो यदि आप देखें पृष्ठभूमि, तो हर जगह आपको संकट के समय में लोग अपने आना चाहते थे माता पिता के पास, अपनी भूमि को छूना चाहते थे। लेकिन साथ में कोरोना भी चला आया। जो कर्फ्यू लगाया गया उसका मकसद यही था कि अब जब लोग आ गए हैं तो घरों में रहे, ताकि घरों से लोग जिसको हेल्थ का रिस्क होगा वो सामने आ जाएगा। तो हमें देखना होगा कि कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि कितना हम डिजास्टर का रिस्क को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू डेवलप देयर ओन कैपेसिटीज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ अदर वायरसेस हमने देखा, चाहे वो सार्स का हो, 2003 में ट्रेवल बैन था साउथ चाइना में, या स्वाइन फ्लू का वायरस हो, कोरोना वायरस हो, एड्स का वायरस हो, इसमें आपस में ही मतभेद है, जबकि ये भी गलत है। चाइना कहता है साहब आपने एड्स फैलाया, आपने ये स्वाइन फ्लू फैलाया, तो वो कहता है नहीं आपने सार्स फैलाया, आपने स्वाइन फ्लू फैलाया। अब ये चर्चा का नहीं है, ये मानवीय एक संकट है। संकट के समय में हमें मिलकर चुनौतियों का सामना करना है। देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे राइटफुल गाइडेंस हो या WHO की, ICMR की, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है विकास के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में करंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एक बहुत डिसहार्टनिंग पिक्चर सामने आती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारा लॉकडाउन बेकार गया क्या। तो हमें समझना होगा, व्हाइल इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, हमें यह देखना होगा हाउ इट एमर्जेस, हाउ टू डेवलप एंड इवेल्युएट कैपेसिटी एंड हाउ टू सस्टेन कैपेसिटी। सस्टेनेंस जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत मुश्किल काम है सस्टेनेंस। बातें सब करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सस्टेन करना, निरंतर उसको आगे लेके बढ़ना, वो बहुत बड़ा जटिल कार्य है। देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं 3 महिलाएं विश्व की बहुत अग्रणी रही, चाहे वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जर्मनी की मर्कल हो, या आइसलैंड की PM हो, और कुछ लोग बहुत हल्के में लिए चीजों को। सर्वोपरि नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जिन्होंने कल ही मास्क लगा के विश्व को बताया मैं महामारी के देश में हूं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। ये अरिस्टो ने जो अपने शब्दों में कहा, मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें समाज के हित में, समाज का रह के, समाज के बारे में सोचना है, करना है, निर्वहन करना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हाउ ह्यूमन बीइंग बिकम अनसोशल। और दूसरे शब्दों में इसी बात को कहते हैं, मैन लाइफ हैज बिकम नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट लिव। वो कैसे हुआ? क्यों लेवियाथान की जरूरत है? क्यों स्टेट की जरूरत है? क्यों एब्सोल्यूट संप्रभुता की जरूरत है? क्या लोग बात मानते नहीं है? या लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी
लोग कहते हैं ये मेरी जान है, यदि मैं इसको मरना चाहूं तो मुझे मरने दिया जाए। मैं यदि मास्क नहीं लगाना चाहता, मैं पार्टी में जाना चाहता हूं, मैं बाहर घूमना चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है। ये भी एक समस्या है लोकतंत्र में। क्या किसी के मास्क ना लगाने से यदि दूसरे को हानि हो रही है वो क्राइम है? ये एक बड़ा चुनौती आ गई है। तो इसी सब में हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से इसको सस्टेन किया जाए। सस्टेनेंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, very importantly, there are number of experiences, tools and resources that are now available in the field of disaster risk reduction, and also it relate to the capacity development in terms of the cooperation partners, जैसे Canadian Institute of Development Assistance सीडा, इसी तरह स्टॉकहोम स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस, इसी तरह बर्तानिया के DFID, ये सारी डेवलपमेंट असिस्टेंस है जो पाश्चात्य के देश, विकासशील देशों के लिए कार्य करते हैं। तो WHO का जो 2005 का गाइडलाइन, इट पॉइंट टू मेनी इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेज आल्सो, बट इंपॉर्टेंट इज द COVID-19 short-lived impact on the part of the development cooperation partners. So in this context, the need for many is to familiarize and also to link between capacity, its development, and also health disaster risk reduction. In this, the evidence and knowledge available within the disaster risk reduction community is how to come about in a practice which is still not systematized, still not shared. अभी हम बात कर रहे हैं शेयर्ड आइडेंटिटी की, शेयर्ड विजन की, साझा साथ, साझा विकास, लेकिन ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। भारत अग्रणी रहा। जब सार्क देशों की पहली वास्तविक कॉन्फ्रेंस करी तो मोदी जी ने आह्वान किया सार्क राष्ट्रों से कि भाई आइए बैठिए, इस चुनौती को मिलके लड़ें, मिलके सामना करें। लेकिन पड़ोसियों का क्या रुख रहा, कैसे उन्होंने बर्ताव किया, ये सब आप जानते हैं, विश्व जानते हैं। तो हम जब भारत में आपदा का डाटा देखें तो इंटरनेशनल डिजास्टर डाटाबेस है 2015 का जो अवेलेबल है, उसमें यदि देखें तो एपिडेमिक, बैक्टीरियल डिजीज या पैरासिटिक डिजीज, वायरल डिजीज, भारत में ये डाटा 1900 से अवेलेबल है, 2015 तक का डाटा है। लेकिन कोरोना वायरस ऐसा आया जिसमें सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए विश्व में, और उसी वजह से हम देखते हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑन डिजास्टर, ये एक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। इन्होंने 2013 में डिजास्टर को 5 सब ग्रुप में विभाजित किया। पहले इन्होंने कहा ज्योग्राफिकल डिजास्टर, दूसरा इन्होंने कहा मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, तीसरा कहा इन्होंने हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, चौथा इन्होंने कहा क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर, और आखिरी इनका था बायोलॉजिकल डिजास्टर। जो बायोलॉजिकल है विच इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू जर्म्स। इसी संदर्भ में अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक नेचुरल डिजास्टर में, जो 1993 में प्रकाशित हुई, 6 उपागम की बात करी, अप्रोचेस की। पहली अप्रोच या उपागम उनका था सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, तीसरा डेवलपमेंट स्टडीज अप्रोच, और चौथा डिजास्टर मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, जो हमारे कोविड-19 के संदर्भ में बहुत व्यापक, और उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने ज्योग्राफिकल अप्रोच की बात करी और आखिरी इनकी टेक्निकल अप्रोच की। तो ये मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजिकल उपागम क्या था? इसका मानना था उपागम का कि ये जो है फोकस करता है मैनेजमेंट ऑफ मास कैजुअलिटीज,
अभी हमने देखा अमेरिका जो हल्के में ले रहा था, सबसे मास कैजुअलिटीज हुई। यानी पहले ही महीने में 80,000 से ज्यादा आंकड़ा पार हो गया, और अब तो ये हाल है 1,30,000 के बाद वो आंकड़े आने बंद हो गए उस तरीके से। बर्तानिया ने तो बाद में डिक्लेयर ये करा कि हमारे आंकड़े और भी ज्यादा हैं, क्योंकि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनका डाटा नहीं लिया। तो ये बहुत बड़ी मैस कैजुअलिटीज है। इस अप्रोच में ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल ट्रॉमा की बात होती है, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस की बात होती है। तो द इंसिडेंस ऑफ डिजीज COVID-19 generally increases after a disaster as there is disruption of public health. इसीलिए भारत ने तुरंत लॉकडाउन अनाउंस किया। भारत को लगा कि अभी समय उचित नहीं है खोलने के लिए, तो पहले समझा जाए ये है क्या परेशानी। एंड आफ्टर अ डिजास्टर देयर इज अ डिसरप्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। अमेरिका में वही हुआ, इटली में भी वही हुआ। दूसरा एक और जो पुस्तक है बेनिन की, मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये 1985 में प्रकाशित हुई। और बेनिन कहते हैं मेडिकल सपोर्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर इनिशियल सर्च एंड रेस्क्यू फेज। वही भारत ने करा। तो अमेरिका में और भारत में यही इसीलिए अंतर हुआ कि हमने इसको समझने में समय नहीं लगाया, और हमने उसी संदर्भ में कार्य करा, Please remove और the उसका हमें फायदा disruption. भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं फ्लड्स की, वो भी एपिडेमिक क्रिएट करते हैं। जैसे फ्लड्स के बाद आप देखेंगे डायरिया आ जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शियस डिजीज आ जाते हैं। जब हम बात करें डिजास्टर, अर्थक्वेक, टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स क्रिएट आते हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आता है। बट मेडिकल फैसिलिटीज आर डिलीवर्ड टू द विक्टिम इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द डिजास्टर, जिससे कई सारी जानें बच जाती हैं। लेकिन epidemiological disaster is totally different. And in this context, institutions for capacity development is very, very important. And there lies my discussion with you. That is, effective disaster risk reduction requires organizations, institutions, not only within the organization as such, but also between them in larger institutional framework. जहां हम बात करते हैं भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और सर्वोपरि समाज, संगठन किस तरह मिलकर इसका सामना कर रहे हैं। यह हम बात करें विधायिका का, लेजिस्लेशन, जैसे मैंने चर्चा करी स्टैंडिंग कमेटी की, पार्लियामेंट की, या नीतियों की। अभी बहुत बड़ी चुनौती है पंजाब और विद्यार्थी और अध्यापक गण के समक्ष के किस तरीके से परीक्षा कराई जाए। पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और है। विद्यार्थी भी परेशान है, ये भी एक चुनौती है, किस तरीके से सामना करना है उसका। दिल्ली ने फैसला लिया कि राज्य विश्वविद्यालयों में नहीं होगी परीक्षाएं। तो हमें ये देखना होगा, ये समझना होगा कि किस तरीके से हमारे नीतियां हों, किस तरह उसका निर्वहन हो। और उसी संदर्भ में अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बिकम आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग परसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल गाइडेंस फॉर बिहेवियर। जब हम बात करते हैं बिहेवियर की, अब आप खुद बताइए, व्हाट इज इन योर व्यू और व्हाट आर योर थॉट ऑन द COVID-19 क्राइसिस वी आर गोइंग थ्रू। सारी जिंदगी बदल गई, आपकी परिप्रेक्ष्य बदल गया। या व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड ऑफ अस। आप देखिए किस प्रकार के आपसे बदलाव की अपेक्षा की जा रही है समाज से, में आप कैसे आए, कैसे रहें, किस प्रकार का व्यवहार हो आपका। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, किस प्रकार के अवसर हैं जो आप इसमें सीज कर सकते हैं। काफी सारे लोग अपने परिवारों को समय नहीं देते थे, आज वो दे रहे हैं। काफी सारे लोग जो नजर नहीं आते थे, अब वो नजर आ रहे हैं परिवार में। तो चुनौतियां भी आ रही हैं, जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया, वाइफ बीटिंग, चाइल्ड अब्यूज, ये सब भी बड़ा है।
इसी कोविड-19 में व्हाट प्रैक्टिसेस यू शुड गिव अप। बहुत बड़ी चुनौती थी। दिल्ली में शराबबंदी हुई तो कितने लोग परेशान हो गए, खोला लॉकडाउन तो शराबों की दुकानों पे लाइन लग गई। व्हाट हैज बिकम अनएक्सेप्टेबल, ये भी बड़ी चुनौती है। कोविड-19 पोस्ट में जब हम आएंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हमें जो चीजें अनएक्सेप्टेबल हो गई हैं, आपको हाथ शेकने मर्सी मर्सी, और बर्तानिया में भी इसी तरह ही है। लेकिन अब चेंज हो गया, पूरा व्यवहार व्यवस्था बदल गई है। व्हाट हैज बिकम अनएक्सेप्टेबल, व्हाट कैन वी डू टू मेक चेंज हैपन। अब विश्वविद्यालय महाविद्यालय खुलेंगे, कैसे आपको आना है, रहना है, किस प्रकार का आपको अपना व्यवहार में बदलाव करना है, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। और उसी में व्हाट ऑब्स्टेकल्स यू आर गोइंग टू एनकाउंटर post COVID. Then there are also strengths which have to get through this and also make a world forward. सृष्टि का नियम है परिवर्तन, हमारा व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसी संदर्भ में एक और बड़ी संस्था है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी तो एपिडेमिक एक्ट लागू हो गया है, उसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है। क्या चीजें ऐसी हैं जो हम नोटवर्दी कर सकते हैं, जो नीतियों के संदर्भ में हो या प्रोग्राम के संदर्भ में हो, क्योंकि चुनौती बहुत जटिल और कठिन है। हम सबका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। ये कोविड-19 कोई मामूली चीज नहीं है। कई राज्यों में इसकी घर वापसी भी दोबारा हो रही है, चाइना में दोबारा आ रही है, और यहां भी हमने देखा लोकलाइज स्प्रेड हो रहा है, सुपर स्प्रेडर्स भी हैं, और उनकी वजह से भी परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा में एक विवाह समूह में 25 लोग संक्रमित हो गए, 250 लोग आए। ये सब भी हमें देखना होगा। कई कई संपन्न देशों में विवाह समारोह में सिर्फ जा नहीं रहे 50 लोगों, खाना भी टिफिन में देते हैं, भैया खाना घर ही ले जाके खा लेना, अभी यहाँ बैठोगे संक्रमण का डर है। होम डिलीवरी हो रही है फूड की, घर ही खा लीजिए, कोई बात नहीं, हमारा भी मान रहेगा, आपका भी मान रहेगा। तो ये सारी चीजें बदलाव है व्यवहार में। जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डूइंग इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेटिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, चाहे वो फेस टू फेस हो, वेब बेस्ड हो, सैटेलाइट बेस्ड हो, सेल्फ स्टडी बेस्ड हो, जहां इंफॉर्मेशन डिसिमेट की जा रही है, कैंपेन्स लागू किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा भी, पुलिस भी अपने वाहनों पे लगा के प्रचार प्रसार कर रही है। आप सबको सहयोग करना है। कितने तो हमारे पुलिसकर्मी इस कोविड-19 में स्वाहा हो गए, शहीद हो गए। तो उसी संदर्भ में हमें देखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, टू कीप द वल्नरेबल कम्युनिटी पॉपुलेशन मोर विजिलेंट एंड ऑल्सो इन द इंस्टेंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन or preparedness in the event of any disaster, as we are facing COVID-19, which is a natural disaster, which is a biological. It becomes more important to understand the paradigm of vulnerability. अभी हम vulnerability की भी बात कर रहे हैं। हम लोग कितने vulnerable हो गए, जो हमारे घर से बाहर जा रहे हैं, वो जब घर में आ रहे हैं, क्या वो कोरोना कैरियर है या नहीं है। देश के महानायक वो भी नहीं बचे। ये कहीं भी जा सकता है, ये वायरस बहुत खतरनाक है। कई सारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को देखे, या कई प्राइम मिनिस्टर, कई मिनिस्टर विश्व में, प्रेसिडेंट्स, इवन ब्रिटिश रॉयल फैमिली तक में ये पहुंच गया, आगमन हो गया वहां भी। तो इसको हल्के में नहीं लीजिए आप। वल्नरेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस वायरस, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स and circumstances of a community which has a system or assets that make it susceptible
to the damaging effect of the pandemic COVID-19 as a hazard. Mainly it has three components. Number one, livelihood. जैसे मैंने बताया 20 से 25 करोड़ लोग लाइवलीहुड से दो चार हो रहे हैं बेचारे. ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और सारे कई व्यापार और व्यवसाय बहुत समझने की जरूरत है वल्नरेबिलिटी को. और जब हम बात कर रहे हैं वो लाइवलीहुड से जुड़ा है. दूसरा, सेल्फ प्रोटेक्शन. सेल्फ बहुत जरूरी है, सेल्फ को समझना बहुत जरूरी है. चार्ल्स टेलर ने, हेगल ने, सब ने सेल्फ की बात की. क्या है ये सेल्फ? हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेल्फ प्रोटेक्शन टू डील विद दिस पैंडेमिक. एंड नंबर 3, सोशल प्रोटेक्शन. खुद भी बचना है, समाज को भी बचाना है. जैसे मैंने कहा, सोशल एनिमल. आप एक मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाज के हित में, समाज का रह के, समाज के संदर्भ में ही सोचना है और करना है कार्य. अपना भी सुरक्षा, दूसरे की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी. नेशनल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, फिजिकल वल्नरेबिलिटी और इवन एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी. अभी आप देखिए, नमामो गंगा पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन जब से कोविड आया तो पूरा वातावरण स्वच्छ हो गया. जिस चंडीगढ़ से कभी पर्वत नजर ना आते थे, आज वहां साक्षात दर्शन हो जाते हैं. ये एक बहुत परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन, मेजर परिवर्तन. कि आज प्रकृति या सृष्टि कितनी पवित्र हो गई है. क्लाइमेट चेंज की चर्चा पेरिस में हुई, लेकिन हमने देखा कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद एक नया परिप्रेक्ष्य था क्लाइमेट चेंज का. हमें समझना होगा एनवायरनमेंट को. और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल, संस्थाएं किस प्रकार इस वल्नरेबिलिटी से लेके आगे बढ़ रही हैं और एक नया आयाम जोड़ रही हैं. और इसी संदर्भ में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हैजार्ड, डिजास्टर एंड वल्नरेबिलिटी. Hazard, disaster and vulnerability. A hazard need not produce a disaster every time. Disaster is the impact of natural hazard upon vulnerable people. So in this context, the vulnerability analysis must analyze the situation of the potentially marginalized groups. जैसे मैंने आपसे चर्चा करी, अब ये marginalized groups कौन कौन से हैं? Households. तो आप देखिए, आपके घरों में मेड सर्वेंट्स नहीं आ रही हैं, उनके घरों का क्या हाल होगा? कौन चला रहा होगा? आप ही पे निर्भर थे वो. या महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, अभी उनको ऑफिस से भी दो चार होना पड़ रहा है और घर का भी परिश्रम से दो चार होना पड़ रहा है. और बच्चे भी वही हैं. जैसे अमेरिका में तो संकट है, वहां तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और बच्चे घर पे हैं. कैसे होगा संभव? इसीलिए उन्होंने कहा अगले महीने से हम अनलॉकिंग शुरू करेंगे. वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा, सेक्रेटरी ने. इसी प्रकार बच्चे, युवा, ये सेंचुरी, एशियन सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अमेरिका ने कहा एशियन सेंचुरी. वास्तविकता में हम देखें तो भारत एक सभ्यता रही है पूरी. दूसरी तरफ ईरान, वो भी एक सभ्यता रही. तीसरा आपका चाइना भी एक सभ्यता रही. किस प्रकार चाइना अपने आप को वायरस के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी एक संकट है. मानवीय संकट का फायदा उठाना चाहता है. लेकिन ये समझना होगा कि एशिया का साझा विकास ही रहा है और हमें सब मिलके इस चुनौती से लड़ना होगा. एक और जो सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है वो है एल्डरली पीपल. इस लॉकडाउन या पेंडेमिक में हमने देखा एल्डरली पीपल भी बहुत सारे दो चार हुए. और यदि मृत्यु दर हुई तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की हुई जो एल्डरली पीपल थे. दिल्ली में भी जो पहली मौत हुई वो उसी महिला की हुई पूसा रोड में. जो बालक अपना इटली से वायरस लेके घर में घुसा, वो तो स्वस्थ हो गया,
लेकिन उसकी माँ बेचारी चल बसी। हमें समझना होगा। और एक और जो ग्रुप सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो है डिसेबल्ड, एंड ऑल्सो सम पीपल ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन विल बी इफेक्टेड। So vulnerability, we can say, is similar with poverty. They are all related. Vulnerability in terms of health, social precaution and individual strength, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप मेंटली फिट होंगे। आज मेंटल हेल्थ स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ भी खाएंगे आपके शरीर को नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। तो भारत में जब हम बात कर रहे हैं इस कोविड-19 की, 5,30,000 लोग रिकवर भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, जिसमें 2,90,000 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें यदि हम देखें रिकवरी रेट 64% तक आ गया है। पिछले 24 घंटे में 19,000 लोग रिकवर हुए। और टेस्टिंग की यदि हम बात करें तो पर मिलियन इट हैज रीच 8,396। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें जिससे लड़ना है। कोविड पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है। मेडिकल अटेंशन ना होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसी संदर्भ में देश के स्वास्थ्य मंत्री बहुत अग्रणी हैं। वो चाहते हैं कि जहां जहां जरूरत हो बेड्स का निर्माण हो, हॉस्पिटल्स का नया निर्माण हो। दूसरी तरफ आर्थिक पैकेज भी दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसमें 20 लाख करोड़ आवंटित हुए, जो 10% है भारत के जीडीपी का। और ये सब फाइट करेगा कोविड-19 पैंडेमिक। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था, और उसी संदर्भ में फाइनेंस और कॉर्पोरेट मंत्रालय जो इकोनॉमिक पैकेज दे रहा है आत्मनिर्भर भारत में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जरूरत है हर आदमी को आगे बढ़ने की। वहीं उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भी फेसबुक पे म्यूजिंग्स ऑफ लाइफ इन कोरोना टाइम्स की चर्चा की, जहां उन्होंने 10 पॉइंट मैट्रिक्स की बात की, जहां उन्होंने बात करी कि पेंडेमिक को नए आयाम से देखना होगा, समझना होगा, करेक्टर लाना होगा जिंदगी में, तभी हम इससे डील कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में ये एक मानव अधिकार के संदर्भ में मुद्दा है। मानव अधिकार एक मानव से मानव के प्रति प्रेम और उसको सक्षम बनाने की क्षमता, उसको संरक्षण देने की क्षमता, उसके प्रति अपने अधिकार लागू निर्वहन करने की क्षमता बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा मैंने बताया आपको, पंजाब में चर्चा चल रही है परीक्षाओं को लेकर कि किस प्रकार की परीक्षा विद्यार्थियों को कराए ताकि एक नया निर्माण हो सके। तो समझने की बात यह है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो पोस्ट कोविड में तो किन चीजों पे ज्यादा असर डालना है? पहला है टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग। यदि हम ये सब कर पाए तो इन्फेक्शन रेट का कंट्रोल होगा, और जब कंट्रोल हो जाएगा तो हमने देखा कुछ सारे एग्जाम्पल, सिंगापुर का एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है, न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल है, कई सारी कंट्रीज हैं जो एग्जाम्पल्स हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है। संस्थाएं रह जाती हैं यदि मानव उसमें आगे ना बढ़े और उसमें सहयोग ना करे। आज समय आ गया है इस आपदा के संकट में
सबको मिलजुल के एक सॉलिडेरिटी के साथ आगे आह्वान करना है और इस पेंडेमिक सिचुएशन को हमें ओवरकम करके उन लोगों को सहायता देनी है जो समाज में जरूरतमंद है, जो मैंने आपको बात करी वल्नरेबल ग्रुप्स की। आप सब ने मेरी बात सुनी। मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद आप सबका। भारद्वाज जी सर। भारद्वाज जी सर। जी सर। सर थैंक यू डॉक्टर नवेद जी। ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ जी सर, जी सर। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो भारद्वाज सर। धन्यवाद सर एक क्वेश्चन, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਕਲਾਚੌਕ। ਪੂਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਿਚ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। नावे सर, जी सर। बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। इवन देन पूरी तैयारी के साथ सारे के सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं